हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के इंटीग्रेशन एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा ही देखो बिकॉज 1 to 22 क्वेश्चंस आर देयर एंड आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस इन अ वन शॉट एंड बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश रहेगी मेरी। और 100% है कि ये आफ्टर वॉचिंग द वीडियो you will get all the answers clearly and also solve and prepare for your examination. So let me start with a question number 1. Sin square 2x plus 5. How to integrate this one? देखिए इसके लिए आपको एक सिंपल फार्मूला यूज करना है जो ऑलरेडी आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 sin square x by 2. Here we have a sin square, okay, so sin square x by 2 now, okay, sin square x है, so we write a 1 minus cos 2x, that formula is a 2 sin square x, and for sin square we will take this 2 in the denominator place, okay, so write this as a 1 minus cos 2 and at the place of x we put as 2x plus 5 upon 2, this 2 come here and dx. Now integrate like a 1 by 2 dx minus half cos 2x plus 5 dx. It's a very simple, it's a x by 2 integration because integration of dx only written, so it's a x by 2 minus half, and we have the integration of a cos 2x. Integration of a cos 2x is a sin 2x, so write sin 2x upon 2, so write sin 2x plus 5 and upon 2 it's a formula of the cos 2x integration, that is a sin 2x upon 2, and now we integrate this 2x and we get a 1 2 again, so our answer become a x by 2 minus 1 by 8 sin, and this multiply this way we get a 4x plus 10 plus c, okay. So question number 1 is done here for you. Hope the question 1 is clear with your. Question number 2, it's a integration of a sin 3x cos 4x dx. For integration of a sin 3x into cos 4x, we apply the trigonometry formula again. First we write like this, a cos 4x into sin 3x dx, because angle of a cos is a bigger than, so better we write like this, okay, कि angle cos की बड़ी है तो हम cos x into sin y के फॉर्मूले में ज़्यादा लगाएं तो बेहतर होगा, तो we write a 2 cos x into sin y formula. If we taken 2 here, then we have to multiply by half here, okay. Now we know that a 2 cos x into sin y by the trigonometry of class 11, its a formula is a sin x minus y minus sin, sorry, x plus y, and here is a minus y because we have a cos x is before than the sin y, so taken the minus here, okay, sin x plus y and a sin x minus y. So by using this formula we convert this line into the half, and this way we get a sin plus of a 4x and a 3x, that is a 7x, and this minus sin
4x minus 3x, that is a sin x. Now integration is a very easy. You are easily can see that we integrate like a sin 7x in a cos 7x upon 7, so it's become a 14, and it is also in a minus sign, and this is a half cos x and become a plus. So our integration is over here for the question number 2. Hope this concept is clear to you. This is a trigonometry formula. Without trigonometry formula you cannot do this one. So be learn the trigonometry formula and do the practice for the trigonometry formula. Okay, next question number 3. For question number 3, there is a 3 terms of a cos x, cos 2x, cos 4x and a cos x dx. देखिए how we integrate, we easily integrate by this way. Like we know that a 2x and a 4x के addition क्या हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे, and we use the formula of a cos x cos y. So taken 2 as a common here, यहाँ पे हमने 2 ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, नॉट अ कॉमन सॉरी, एंड डिवाइडेड बाय 1/2, एंड कॉम्बिनेशन जो हमने लिया है यहाँ पे cos 4x इंटू कॉस 2x का हमने पहले लिया है, टू अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ 2 cos x इंटू कॉस y एंड कीपिंग द साइड cos 6x. यहाँ पे हमने cos 6x को साइड में रखा है. सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हुए यहाँ पे इनको क्या करेंगे, cos 4x एंड 2x cos 6x आ जाएगा आपका. ओके, cos 6x एंड प्लस cos 2x, ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने इस फॉर्मूला के लिए ये लिखा है. ओके, अब नेक्स्ट हमारा ये cos 6x यहाँ पे रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए. नेक्स्ट लाइन में फिर आपका क्या होगा, हाफ. देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, cos स्क्वायर 6x प्लस इंटीग्रेशन 2 फॉर्म्स में यहाँ पे हम लिख लेंगे cos 6x इंटू cos 2x dx. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2. ओके, तो यहाँ पे अगर cos स्क्वायर 6x है तो वी हैव टू राइट अ 1 प्लस cos 12x अपॉन 2, and this is again by using this formula we write a cos, इन दोनों का प्लस किया, डेट इज 8x, एंड इस हाफ को भी लेते हुए चलेंगे cos 8x, और इन दोनों का माइनस किया यहाँ पे देखिए, तो आपका आ जाएगा प्लस हाफ, हाफ यही वाला मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, cos 4x dx. ओके, तो ये अब हमारी इंटीग्रेशन की लाइन बन गई. डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन यहाँ से कर लेंगे. अब देखिए यहाँ पे ये हाफ हाफ 1/4 dx प्लस 1/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया cos 12x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ ए cos 8x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ए cos 4x. इंटीग्रेट हमारी होकर ये आ जाएगी हाफ x, हियर इज अ cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 12x, cos 12x का sin 12x एंड 4 इंटू 12, हियर नीचे भी आ गया हमारा 12. इसी तरह से इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 8x अपॉन 16 एंड प्लस sin 4x upon 8. Now every term has a 1/4,
So take 1/4 as a common. We can write x plus 1/12 sine 12x plus 1/4 sine 8x plus 1/2 sine 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बस यही फॉर्मूला यूज करना है। तो यू कैन सी डेट how much trigonometry formula is important for the integration also. So in a class 11 and 12th, if you want to a good marks in your math, so never be ignore the trigonometry formula, always hold the trigonometry formula and learn all the trigonometry formulas. Okay, तो इसकी ऐसे बैठ के तो लर्न नहीं होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके ये फॉर्मूलाज आपके माइंड में सेट होते जाएंगे। हमने यहाँ पे अभी देखा 2 क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को यूज किया है और फिर हमने कॉस स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला ये यूज किया है जो आपने क्लास 11th में देख रखा होगा कि 1 प्लस कॉस एक्स क्या है 2 कॉस स्क्वायर x/2। यहाँ एंगल हाफ हुआ तो ये पूरा है और माइनस में 2 साइन स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला हमारे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखो क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। सो लेट बी क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 4। फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन क्यूब 2x plus 1 we use the formula of the trigonometry again, that is a sin 3x equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. So applying this formula we write this one as a sin 3 and at place of x we have a 2x plus 1 minus no, first we write a 3 sin x. So write a like a, because 4 sin cube x I have taken here to make it a positive. So write a 3 sin x minus sin 3x. So we write a 3 बाहर ले लेते हैं, sin x की जगह पे ये माइनस आपका sin 3x, that is a sin 3 and x की जगह पे 2x plus 1 and this 4 is taken as a divided form. Okay, 1/4. Now integrate this one and you get a answer, that is a 3/4 cos 2x plus 1, but integration of a sin x is a minus cos x, so write a minus here and now 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, तो ये 8 आ जाएगा आपका and this becomes a plus 1/4. This is a sin 3x, so it's a cos 3x, cos 3 2x plus 1 and this 3 is a come here and 2x का जब इंटीग्रेट करोगे तो वो भी आपकी यहाँ नीचे आ जाएगी into 2. Now after simplify we write a, so we have a minus 3/8 cos 2x plus 1 and 1/24 cos 3 2x plus 1. Next question है question number 5. It's a sin cube x and a cos cube x dx. Very simple. We write a sin cube x and 1 minus sin square x for a cos square x. यहाँ पे हमारे cos के 3 पावर हैं, मैंने cos square x को कन्वर्ट कर दिया 1 minus sin square x में and 1 cos is a still here. So can I take sin x as a t and so dt is a cos x dx. So by putting this formula we get a t cube 1 minus t square and it's a dt. Now it convert into the line of a t cube minus t to the power 5 dt. So t3 का जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो t4/4 and minus t6/6
6 plus c. Now putting the value of a t, that is a sin x, to sin to the power 4x upon 4 minus sin to the power 6x upon 6 plus c is our answer. Here if you take a cos x as a t, and then you can also convert the sin square x into 1 minus cos square x. ओके, देखिए आप, मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स को साइन में कन्वर्ट किया, आप यहाँ पे साइन को भी cos में कन्वर्ट करके आंसर लेकर आ सकते हो, बट वहां पे इंटीग्रेशन हमारा आंसर cos के फॉर्म में आ जाएगा। तो मैंने आपके ये डाउट भी क्लियर किए हैं यहाँ पे कि इफ यू आर लेटिंग अ cos x as a t, then you are also correct. If you are letting the sin x as a t, then you are getting a different solution, different answer. Okay, but still you are correct. ओके, सिमिलरली आपके ये जो क्वेश्चन थे साइन क्यूब 2x प्लस 1, यहाँ पे भी एक अल्टरनेटिव मेथड आप यूज कर सकते हो, जो कि आपका है, सपोज आपने अल्टरनेट मेथड यूज किया तो साइन आप क्या कन्वर्ट कर लोगे, साइन स्क्वायर में और एक साइन में। ओके, सो कैन आप साइन को t लेट करके कॉस को एज ए dt देख सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 लिखा एंड एक मैंने साइन 2x प्लस 1 एज इट इज रखा। ओके, और इस साइन स्क्वायर x को, ये हमारा होल x है, तो आई कैन कन्वर्ट लाइक अ कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 एंड होल ब्रैकेट क्लोज एंड साइन 2x प्लस 1 dx, and if I let a cos 2x plus 1 as a t here, we have a dt here. Okay, and by differentiating that method we get a different one integration, so don't be confused because either this or this, both are correct. Okay, for example NCERT के ही क्वेश्चन पेज नंबर 306 में मैं आपको एग्जांपल शो करना चाहूंगी, जहां पे सेम इंटीग्रेशन है बट यू गेट अ डिफरेंट आंसर solution by the different method. Here we have to integrate sin cube x, so we have taken a 3 sin x minus sin 3x by 4, 3 by 4 sin x and a 1 by 4 sin 3x. You get this integration, but if you integrate sin cube x like sin square x into sin x, then 1 minus cos square and a sin x, letting a cos x as a t, then you get a dt and you have a different solution. You can see this one and this one, so in both answer are acceptable. You can remark it can show using trigonometry identity that both answer are equal, so don't be confused either this one or this that one. You can go through the any one of the option because both trigonometry formula are right in themselves and we can use any one formula. So let me do the next question number 6. Similarly मैंने आपको यहाँ पे भी बताया because this answer is not matching with your NCERT, but this is 100% absolutely right. Okay, so next question, question number 6. For integration sin x, sin 2x, sin 3x, again we use a trigonometry formula, that is a cos, because cos x minus y में आपने देखा है साइन साइन ही आते हैं, तो विल लेट हियर अ cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिसमें जिसकी वैल्यू हमारी होती है, देखिए 2 फोर्स, तो हमें यहाँ पे 2 डालना है, जैसे अभी हमने हर क्वेश्चंस में किया, 1/2 से डिवाइड करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है एंड साइन 2x साइन x, ऐसा हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले के लिए, बिकॉज 2 साइन x इंटू साइन y है ना, दिस वन इक्वल टू क्या होता है 2 साइन x इंटू साइन y। बहुत ध्यान से आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देखिए। ओके, जब ये ऐसे होते हैं तो हमारे कॉस कॉस आते हैं,
तो यहाँ हमने इसमें कन्वर्ट किया है और फिर हाफ और इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें। ओके, तो आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे cos 3x आप लिखोगे माइनस cos x लिखोगे एंड ब्रैकेट क्लोज। आपका नेक्स्ट है sin 3x dx। ओके, नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे, हाफ cos 3x sin 3x एंड हाफ sin 3x एंड cos x dx। अगेन आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करोगे, हाफ एंड पुटिंग 2 हियर मल्टीप्लाइंग 2 हियर sin 3x cos 3x। ओके, जब भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ डिवाइड भी करना होगा, तो ये आपका 1/2 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपके थे sin 3x cos x। ओके, तो हम यहाँ डिफरेंट फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ हमने इसलिए ऐसा किया बिकॉज sin 2x के फॉर्मूले में हमें इसे कन्वर्ट करना है। sin 2x का फॉर्मूला आपका क्या होता है, आप sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x लिखते हो। तो यहाँ पे मैंने sin 3x एंगल सेम थे तो मैंने 2 यहाँ लगाया और यहाँ पे लगाया, और इस साइड के लिए मैं sin 3x cos x है। तो हम फॉर्मूला ये जो आपका आइडेंटिटी है 2 sin x sin y वाली, तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया तो 2 sin x cos y वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। ओके, और जिसमें कि हमारा ये sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई की आइडेंटिटी होगी। ओके, तो उस आइडेंटिटी को लगाते हुए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। ये मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे 4 कर दिया, 2 sin x cos y, तो हमारा आ जाएगा sin 3x एंड दिस x 4x एंड प्लस sin x माइनस वाई, तो sin 2x dx। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे 1/4। इसके लिए आप लिखोगे, देखिए 2 sin x इंटू cos x का क्या आता है, sin 2x आता है, तो ये sin 6x में कन्वर्ट हो जाएंगे। sin 6x dx 1/4 sin 4x माइनस 1/4 sin 3x। नाउ इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर लेंगे, 1/24, ये मैंने 6 को नीचे कर दिया, cos 6x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस होता है, इसको लिखोगे एंड ये आपका प्लस हो जाएगा 1/16 cos 4x एंड दिस इज ऑल्सो प्लस 1/12 cos 3x। ये जो भी थे हमारे 3 मल्टीप्लायर उसको नीचे हमने ले लिया, इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम डिफरेंट फार्मूला यूज करते हैं तो हमें डिफरेंट इंटीग्रेशन वैल्यू आती है, बट बोथ आर करेक्ट, सो डोंट बी कंफ्यूज। सो ओनली यू हैव टू कमांड ऑन योर फॉर्मूलाज कि जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो वो आपके बिल्कुल ही करेक्ट होने चाहिए, और यहाँ पे आपको दूसरे बच्चों से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दूसरे बच्चों के आंसर्स अगर डिफरेंट आ रहे हैं और आपके डिफरेंट आ रहे हैं तो यहाँ पे आप कंफ्यूज भी मत हो, बिकॉज फॉर्मूला जैसा लगाओगे वैसे इंटीग्रेशन वैल्यू आती है। तो होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, और आप क्लास 11th की बुक को एक बार फिर से देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूलाज जहाँ पे हैं कि क्या फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, और उन फॉर्मूले को बिना ध्यान में रखे हुए आप बिल्कुल इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। तो ये मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी है। और साथ में एक और बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देती हूँ आपको, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में और भी आपके जो भी डाउट्स हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि दीज 2 आंसर्स आर नॉट मैचिंग विथ एनसीईआरटी बट स्टिल दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगेन यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ 2 sin x into sin y. So here is a sin 4x and a sin 8x dx, and 1/2 से डिवाइड करेंगे, so write a 1/2 here है, and a 2 sin x इसे लेट कर लेते हैं बिकॉज डिग्री इज हायर देन द 4x, एंड
y इसे लेट कर लेते हैं, तो ये आपके cos का फॉर्मूला है। cos अभी जस्ट हमने उस क्वेश्चन को किया है, cos x प्लस वाई एंड माइनस cos x माइनस वाई, इस पे हमने रख दिया और हमारी इंटीग्रेशन इजिली यहाँ से आ जाएगी। डेट इज आवर आंसर, डेट इज अ cos 12x minus half cos 4x. Now integrating you get a answer solution here. So next question, question number 8. I am leaving here for you. Just do the sin 12x upon 12 and a sin 4x upon a 4. Next question number 8. 1 minus cos x upon 1 plus cos x. If any students do not know or are aware about the class 11th trigonometry formula, cannot be solve this one or integrate this one. Why? Because for this integration we have to apply the formula, that is a 1 minus cos x is a 2 sin square x by 2 and 1 plus cos x is a 2 cos square x by 2 dx, and 2 is a cancel, it's become a 10 square x by 2, and integration of a 10 square x by 2 is not possible. So convert the 10 square x by 2 in sec form. So write a sec square x by 2 minus 1 dx. Okay, because differentiation of 10x is a sec square x by 2, but integration of the sec square x by 2. So write the integration of a sec square x by 2, that is a 10 x by 2, and this one is a minus x plus t प्लस सी। सो इंटीग्रेशन में कभी भी हमें बहुत ध्यान से फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे अभी आप ध्यान नहीं दोगे तो यू डायरेक्ट राइट द इंटीग्रेशन ऑफ ए 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, दैट इज अ sec x by 2, and you will be incorrect. So write like this. And one mistake I have also done here, what is the, it sec square x by 2 is a 10x by 2, but x by 2 का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 1 by 2 नीचे होगा हमारा डिनोमिनेटर में, और वो कन्वर्ट होकर ये हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और तभी आप करेक्ट आंसर ले सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए वी राइट द फॉर्मूला ऑफ ए cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट cos x के लिए हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड 1 प्लस cos x के लिए 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। नाउ यहाँ से हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, तो फर्स्ट आ जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन दिस, so this is a cancel, so 1 by 2 dx, and in this line we have a half 10 square x by 2 dx। इंटीग्रेशन हाफ x हो जाएगी इसकी, और यहाँ पे हाफ 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम फिर से इसे कन्वर्ट कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में, एंड इंटीग्रेशन के बाद वी गेट अ 10x बाई 2, तो हाफ एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो 10x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, 1 बाई 2 आपके ऊपर आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 10x बाई 2 एंड माइनस माइनस प्लस हाफ x, और ये दोनों का कर लिया आपने नेक्स्ट लाइन में, तो x माइनस 10x बाई 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर साइन टू द पावर 4x dx। देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर से ही हम बेसिक फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वी राइट अ साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, इन अ नेक्स्ट लाइन साइन स्क्वायर x को कन्वर्ट करोगे आप 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, डेट इज अ 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर अपॉन 4। नाउ 1 बाय 4 साइड ले लो, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx, इसको आप
स्क्वायरिंग से बाहर निकाल लोगे तो आपके पास आ जाएगी 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx and 1/4. Now in the next line 1/4, 1 minus 2/4 cos 2x, इसके इंटीग्रेशन इजिली हो रहे हैं हमारे। एंड नेक्स्ट हो जाएगा प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x। तो अगेन इस टर्म्स को हमें कन्वर्ट करना होगा फॉर्मूले में, तो इसका इंटीग्रेशन मैं पहले यहाँ पे कर लेती हूँ। दैट इज 1/4x माइनस 1/2 आ गया ये, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, तो sin 2x अपॉन 2, तो ये स्टिल 1/4 हो जाएंगे आपके। एंड हियर 1/4 एंड फॉर cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पे 2x है तो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। नाउ राइट सेम थिंग एंड इट्स 1/8, 1/2 से हमने अलग किया, 1/8 हो गया आपका, 1/8 dx प्लस 1/8 cos 4x dx। तो फाइनल इंटीग्रेशन हमारी आ जाती है हाफ 1/4 x माइनस 1/4 sin 2x प्लस हाफ 1/8 x एंड इट इज 1/32, ये 4 नीचे आ जाएंगे, sin 4x। सो दिस इज आवर इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने 2 टाइम्स फॉर्मूला यूज किया। देखिए फर्स्ट वही sin स्क्वायर x को इसमें कन्वर्ट किया, बिकॉज यहाँ पे एंगल x है तो यहाँ पे 2x होगी, जो हमने बेसिक फॉर्मूला आपको बताया 1 माइनस कॉस x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 डिवाइड हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम फिर से हमारे पास जब cos स्क्वायर 2x है तो आई विल पुट 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ओके, तो इसके बाद इंटीग्रेशन हमारा आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, cos इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4 2x। ये भी आप मोस्टली 10 के जैसा ही करोगे। यहाँ पे आप cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर कर लोगे एंड cos 2x के फॉर्मूले में डाल दोगे। दैट इज 1 प्लस cos 4x लेंगे, यहाँ 2x है तो 4x लेंगे अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एंड नीचे हमारा आ जाएगा 4 और ऊपर आप 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर लगा लोगे। दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 cos 4x एंड प्लस cos स्क्वायर 4x। ओके, तो ये दोनों टर्म तो हमारे अलग अलग होकर इंटीग्रेट हो जाएंगे। अगेन cos स्क्वायर 4x को फॉर्मूले में डालेंगे। देखिए इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, अब 1/4 हो गया ये, प्लस 2/4 एंड cos 4x का इंटीग्रेशन प्लस ये आपका 1/4 cos स्क्वायर 4x को जब डालोगे तो यहाँ पे 4x का डबल एंगल हो जाएगा cos 8x/2 एंड इसको फिर हाफ, ये हाफ x हो जाएगा। cos 8x को इंटीग्रेट करोगे तो sin 8x/8, तो सारे यही आपके इंटीग्रेट हो जाएंगे। ये आंसर आ जाएगा 1/4x 1/8x प्लस 1/16 sin 8x प्लस 1/2 sin 4x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। बहुत ही आसान है, इसको sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x में लिख लेंगे हम लोग, और 1 प्लस cos x एज इट इज नीचे। अब यहाँ पे आप इसको 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर कर लोगे तो 1 टाइम प्लस लिख लोगे और 1 टाइम माइनस, जिससे और नीचे 1 प्लस cos x, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो लास्ट में हमारा 1 माइनस cos x आ जाता है। यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया तो सिंपल हमारा आंसर आ गया x 1 का इंटीग्रेशन एंड cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, तो माइनस sin x। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, थोड़ा अलग सा लेके चलेंगे। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन
cos x माइनस cos अल्फा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग cos 2x का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। cos 2x का फॉर्मूला आपका क्या आता है, दो फॉर्मूले हैं आपके पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसका फॉर्मूला, एंड ब्रैकेट में माइनस इसके लिए भी लिखा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे आप एज इट इज सेम लिखोगे cos x माइनस cos अल्फा। वही यहाँ पे आप देख सकते हो 2 cos स्क्वायर x, सॉरी x है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में आपकी आ जाएगी ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 कॉमन ले लेंगे हम, cos स्क्वायर अल्फा। नीचे आपका है ये x लिखना है cos x माइनस cos अल्फा। अब आप फिर से वही सेम रूल अप्लाई करोगे, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस करोगे तो cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा, तो नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ आ जाएगी ऊपर प्लस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम लिख रहे हैं इसे 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका cos x प्लस cos अल्फा का ये इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा लेंगे, तो 2 cos x प्लस 2 cos अल्फा dx। ओके, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 sin x एंड cos अल्फा भी कांस्टेंट में ले लोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 2 cos अल्फा एंड dx का इंटीग्रेशन x, तो 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x, तो निम्नेटर एज इट इज रखेंगे हम यहाँ पे। डिनोमिनेटर में हमने इस 1 को चेंज कर देना है, किस तरह से, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एंड sin 2x को 2 sin x इंटू cos x। ओके, नेक्स्ट लाइन में आप लिख लोगे यहाँ पे cos x माइनस sin x अपॉन इसका sin cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर ले लीजिए, बिकॉज प्लस में है तो कोई सा भी हम पहले लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से इसे हम नेक्स्ट लाइन में लेट cos x प्लस sin x एज अ t, देन dt हमारा क्या आ जाएगा, dt माइनस sin x प्लस cos x dx। तो अब हमने इंटीग्रेशन यहाँ लगा देंगे, इसको t हमने माना, ये हमारे पास dt है, तो dt अपॉन t स्क्वायर। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन में ये आपका हो जाएगा t पे माइनस 2 हो गया प्लस 1, इट मीन्स 1 बाय टी। तो आपके 1 बाय टी की वैल्यू हमने क्या ली है, cos x प्लस sin x प्लस c। तो आवर इंटीग्रेशन इज अ कंप्लीट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इट्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन 10 cube 2x sec 2x। we write a 10 square 2x like a 10 2x and a sec 2x dx। इसे हम sec में कन्वर्ट कर लेंगे, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 10 2x sec 2x dx एंड लेट sec 2x इक्वल टू t, देन dt हमारी हो जाएगी sec 2x 10 2x dx। So our integration convert into the t square minus 1 and this equal to dt. So next line is a t square dt minus dt
and it's a t cube upon 3 minus t plus c. Now put the value of a t here. Next question है question number 16. Integration of 10 to the power 4x dx. Here we write a 10 square x का whole square x. Now इसे हम convert कर लेंगे 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर dx में. ओके, देन हमारी नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, या आइदर इस तरह से ना करते हुए इससे भी इजी मेथड हम लोग लेते हैं, ऐसे हमने लिख दिया. नेक्स्ट लाइन आप लिखिए 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स. ओके, तो 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और एक 10 को हमने सेक में कन्वर्ट कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड हियर इज अ 10 स्क्वायर एक्स. अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स. ओके, अभी इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा बिकॉज जब हम 10x को मानेंगे t तो हमारा dt है यहाँ पे. ओके, और इसे हमने सेक में कन्वर्ट कर लेना है. then let 10x is a t then dt is a this one, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर dt, एंड यहाँ पे भी आप इसको कन्वर्ट कर लोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx में, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है. अभी आपकी t क्यूब बाय 3 आ गई, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे 10 की, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखोगे 10x माइनस माइनस प्लस x. तो दिस इज आवर आंसर. यहाँ पे आपको सिर्फ 10 की वैल्यू रखनी है, 10 क्यूब x. ओके, सो इस तरह से आसानी से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स. यहाँ पे आप इसको पहले सेपरेट कर लो, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. नाउ नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे हमारे क्या हो जाते हैं, ये साइन क्यूब है साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, कैंसल द साइन स्क्वायर एक्स. यहाँ पे हमारे सिर्फ एक साइन एक्स रह जाएंगे. इसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स में सिर्फ हमारे कॉस एक्स रह जाएंगे, और कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स. नेक्स्ट ये एक साइन एक्स है हमारे पास, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स. अब इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन बाय कॉस एक्स, सिर्फ एक कॉस लेंगे तो हमारा 10x आ जाएगा, 10x एंड 1 बाय कॉस एक्स को वी राइट अ सेक एक्स. सिमिलरली कॉस बाय साइन को कॉट एक्स लिख लेंगे, और साइन एक्स 1 बाय साइन एक्स इज अ कॉसेक एक्स. नाउ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, या फिर आप स्टार्टिंग से भी लेके चल सकते हो. अब यहाँ पे देखिए इनका इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट है हमारे पास, कॉट एक्स और कॉस एक्स का भी इंटीग्रेशन है. सो डायरेक्ट इंटीग्रेशन सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी. ओके, तो इस तरह से ये फॉर्मूला ध्यान में रखकर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18. 18 है आपका कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos square x. For cos 2x, if we write the formula of a 1 minus 2 sin square x plus 2 sin square x upon cos square x, then this is a cancel and we get a sec square x. Directly हम इसका इंटीग्रेशन लिख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास 10x प्लस सी है. तो बहुत ही आसान था. इस फॉर्मूले को याद रखने के बाद ये एक लाइन का हमारा इंटीग्रेशन था. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19. 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स. अब इसे कैसे इंटीग्रेट करें,
तो सपोज मैं 1 के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखती हूँ और फिर इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास यही एक है जिसके बेस पे आगे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो राइट यहाँ से स्प्लिट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब है आपके पास ये डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। ओके, नाउ हियर वी गेट एक साइन कट गया हमारा, तो साइन अपॉन कॉस क्यूब है। ओके, अगर आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ले लेते हो और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स ले लेते हो तो ये टेन एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स बन जाता है। इसी तरह से इस लाइन में भी हमें कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस क्यूब है, तो ये मैंने आपका एक स्क्वायर में है ना ये, और यहाँ पे साइन एक्स, तो हम इसे कॉट में 1/10 में कन्वर्ट कर लेंगे, लाइक कॉस एक्स बाय साइन एक्स, क्योंकि दोनों ना कैंसिल करते हुए सिर्फ मैं एक कैंसिल कर रही हूँ इसके साथ, तो ये हमारा ये कॉस स्क्वायर एक्स रह जाता है। ओके, ये दोनों नहीं किया है क्योंकि मुझे इसको कॉट में कन्वर्ट करना है या 1/10 में कन्वर्ट करना है। तो इसे देखिए अब आपने लिख दिया 10x एंड सेक स्क्वायर एक्स, ये कन्वर्ट हो गया, प्लस यहाँ पे कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स को हम 1/10x भी लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स को हमने सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। बिकॉज अगर 10x को व्हेन वी लेटर t देन वी हैव अ dt, दैट्स व्हाई आई एम मैनिपुलेटिंग दिस वे हियर, बिकॉज मुझे 10x बनाना था यहाँ पे और सेक स्क्वायर एक्स को निकालना था इंटीग्रेशन को आसान करने के लिए, तो ये आपका t एंड dt कन्वर्ट हो जाता है हियर। इसी तरह से यहाँ पे भी आपका 1/t dt हो जाता है और दोनों की इंटीग्रेशन फिर फाइनली हमारे पास आ जाती है टी स्क्वायर बाई 2 एंड इट्स अ लॉग टी। अब टी की वैल्यू आप लगा दोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ए 19 इज अ कंप्लीटेड हियर। तो ये क्वेश्चन लिटिल बिट डिफरेंट है थोड़ा सा, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ पे इसको ट्रिक्स को यूज करना होता है कि किस तरह से हम 10x और सेक स्क्वायर में लेकर आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप यूज करते हो तो ये आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम ले लेंगे इसे, तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस में आपका नीचे से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान रख के करनी होती है और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। दिस इज अ कैंसल। नाउ आपके पास नेक्स्ट आ जाता है cos x माइनस साइन एक्स और नीचे है आपका cos x प्लस साइन एक्स। अब इसको t मान लिया तो ये dt है आपके पास, तो ये log t में आंसर आ जाएगा प्लस c, t की वैल्यू की जगह पे आप साइन एक्स प्लस cos x रखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है। अगर फॉर्मूला याद रहे तो सारी चीज़ें सिंपल हैं कि आपको क्या यूज करना है, और प्रैक्टिस के बिना ये पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्लास 10th 9th में ये फॉर्मूला था आपका, 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हुई थी, cos x इक्वल टू वी कैन राइट अ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ से आपका साइन साइन कैंसिल हो जाता है, सो नेक्स्ट लाइन में यू विल राइट अ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन के बाद पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी इज योर आंसर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ग्रेट 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स माइनस बी। ओके, इसके इंटीग्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे। तो साइन ए माइनस बी से डिवाइड करना होगा यहाँ पे और मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स माइनस बी।
नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे साइन ए माइनस बी और यहाँ पे आप इंक्लूड करोगे x को a माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आगे की लाइन से आपको समझ में आएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे इसकी इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, यहाँ पे हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लेकर चलेंगे जिससे ये कैंसिल होगा। तो ये इस लाइन के बाद आपको बहुत अच्छे से ये भी ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं साइन ए माइनस बी से, फिर प्लस एक्स माइनस एक्स को इंक्लूड कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट लाइन जो आपको ध्यान रखनी है कि वो ये जो विद इन अ नंबर है ये हम कैसे अरेंज करेंगे। तो एक्स माइनस बी हमने पहले लिखना है, फिर यहाँ पे माइनस एक्स माइनस ए, ये इस फॉर्म में आपको लिखना है। बिकॉज यहाँ देखिए एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी और प्लस ए, बट ए को हमें बाद में लेना है और बी को पहले लेना है। रीजन की यहाँ पे हमारा नीचे जब हम इसको फॉर्मेट में डालेंगे, फॉर्मूले में डालेंगे, तो नीचे का हमारा कैंसिल हो जाएगा आसानी से। इसलिए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए पहले, एक्स माइनस बी पहले लेना है, एक्स माइनस बी बाद में लेना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है। साइन यहाँ पे ये आपका इस फॉर्मूले में हम लोग डाल रहे हैं साइन एक्स माइनस वाई। ओके, तो आप लिखोगे यहाँ पे टू कॉस, नहीं साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हम लोग लेंगे यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स माइनस बी एक्स की जगह, और कॉस वाई एक्स माइनस ए एंड माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हमने यहाँ पे रखा है साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, अपॉन ये लिख दोगे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ना यहाँ माइनस से हम लोग इसको स्प्लिट कर लेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे हम यहाँ पे, और इस लाइन में साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये वाला माइनस यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब देखिए आपका क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गया आपका। तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ जाता है वन अपॉन साइन ए माइनस बी, और ये आपका आ जाता है टेन एक्स माइनस बी। इसी तरह से यहाँ पे आपका कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका आ जाता है इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन लिख लेंगे वन अपॉन साइन ए माइनस बी, यहाँ पे आप लिखोगे माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पे भी माइनस होगा बट इस माइनस से वो प्लस हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स माइनस ए। ओके, अब फॉर्मूला में आप देखिए एक बार यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो पहले इसको डिवीजन फॉर्म में हम लिख लेंगे लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगा के, साइन ए माइनस बी यहाँ रखोगे, और लॉग इन साइड में हमने लिखा कॉस एक्स माइनस ए, पहले प्लस में है ऊपर, और ये कॉस एक्स माइनस बी। तो दिस इज आवर फाइनल इंटीग्रेशन। ओके,